صفحہ نمبر 95۔ تسالونیکیا میں انہوں نے کئی معتبر شہریوں کی بیگمات کو مسیحی حلقہ بگوش میں لیا۔ غیر یہودی شوہروں نے اپنی بیگمات کو یہودی عقائد اپنانے سے منع نہ کیا، بلکہ یہ اس زمانے کا رجحان بن رہا تھا۔ لیکن وہ معزز شہری اپنی بیویوں کے اس عجیب جوشیلی جماعت کے میل ملاپ کو مختلف انداز سے دیکھتے تھے، جنہیں ان کے خیال میں ان اجنبیوں نے ان کے شہر میں آ کر خدا جانے کہاں اور کسے بلا مقصد، انہیں پورا یقین تھا، ان کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ان کی دولت کے پیچھے تھے، اس کے علاوہ انہیں کیا فائدہ تھا؟ کچھ نے ایسا اندازہ لگایا کہ فلپیا میں پولس کی خدمت کوئی 1 سال چلی، یہ اچانک اور پرتشدد طور پر ختم ہو گئی۔ ایک دن پولس رسول اور ان کے حواریوں نے دیکھا کہ ایک غلام لڑکی ان کے پیچھے چیختی چلاتی آ رہی تھی۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور تمہیں نجات کی راہ دکھاتے ہیں۔ مقامی طور پر لوگ جانتے تھے کہ لڑکی بدروح گرفتار تھی، اور یہ بدروح لڑکی کے مالک کے کہنے پر لوگوں کے مستقبل کا حال بتاتی تھی، اور اس طرح لوگ اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے پیسے دیتے تھے۔ پولس رسول اس سے نالاں تھے اور وہ اس دیوانی کی باتوں سے اپنی ساکھ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ شور بھی بہت مچاتی تھی، لوگ پولس کی بات بھی نہ سن سکتے تھے۔ آخر پولس سے نہ رہا گیا اور وہ اس پر برس پڑے، اس لڑکی پر نہیں بلکہ اس بدروح کو جھٹکار کہا، میں تمہیں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس کو فوراً چھوڑ دے۔ بدروح نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ پولس رسول کا اس غلام لڑکی سے بدروح کے نکالنے کے متعلق متن میں نہیں بتایا گیا۔ مدتوں سے بدروح نکالنے کے عمل کا خیال کیا جاتا ہے۔ بدروح نکالنے والا اپنی کہانی بیان کرتا ہے۔ فادر گیبریل مارتھ روم کی ڈائیوسیز میں بدروہیں نکالتے تھے۔ اپنے استاد فادر کینیڈیٹو امانتی کے تجربے کی چند کہانیاں سناتے ہیں۔ فادر امانتی نے ایک 11 سالہ لڑکے سے کچھ سخت سوال پوچھے جب انہیں یقین ہو گیا کہ لڑکے میں آسیب ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس دھرتی پر بہت بڑے سائنسدان ہیں، کچھ بہت دانشمند ہیں جو خدا اور تمہاری حیثیت کو نہیں مانتے، تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا، وہ اچھے دانشمند نہیں بلکہ وہ اوسط درجے کے ہیں۔ عامل نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، مجھے وضاحت کرو کہ خدا کے سامنے اپنی آزادی کو دوبارہ مانگنے سے کیا مراد ہے؟ جب تم اس سے جدا ہو گئے تو تم کچھ بھی نہیں ہو، جیسا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ چلو بولو۔ بدروح بڑے غصے اور خوف سے مڑنے اور خوف سے آہیں بھرنے لگی، جو ایک 11 سالہ لڑکے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، ایسے نہ آزماؤ، مجھے ایسے نہ آزماؤ۔ وہ لڑکا اچھا ہو گیا یا نہیں بتایا نہیں گیا۔ اگرچہ یہ پولس رسول کا ارادہ یقیناً لڑکی کو آزاد کرنا تھا، مگر یہ بات اس لڑکی کے مالکوں کو پسند نہ آئی، کیونکہ بدروح نکل جانے سے اس کی پیشن گوئی کی اہلیت بھی جاتی رہی، اور یہ بات سب کو معلوم ہو گئی۔ یوں ان کی آمدنی جاتی رہی اور پولس نے ان کا نقصان کر دیا۔ انہوں نے بھیڑ سے نکل کر پولس رسول اور سیلاس کو پکڑ لیا اور چوراہے تک گھسیٹتے چلے گئے، اور ان کو فسادی اور ملکیت کو نقصان پہنچانے والے یہودی گرداننے لگے۔ پھر وہ ایک مجسٹریٹ کو سزا دلانے کے لیے لے آئے کہ یہ دونوں رومی شہریوں کو تبدیلی مذہب کی ترغیب دے رہے تھے۔ حالانکہ ایسے بدلاؤ کی سرکاری طور پر حوصلہ شکنی کی جاتی تھی، مگر یہ قانون کے خلاف نہ تھا۔ مجسٹریٹ اپنے سرکاری دفتر سے آیا اور رومی کونسل کے عدالتی اختیار کو عمل میں لایا۔ یہ عدالتی اختیار ان کے سامنے رومی نشان لیے تھا، جس سے قانون کا نفاذ اور قانون شکن کو سزا دی جاتی تھی۔ نہ تو کوئی قانونی کارروائی ہوئی اور نہ ہی کوئی قانونی شک لگائی گئی۔ مجسٹریٹ نے پولس اور سیلاس کے کسی دعوے کو سنے بغیر ان کو کوڑے لگانے کا حکم دیا، اور حاکم عدالت نے وہی سزا دے دی۔ یہ بھیڑ جو یہودیوں کو ناپسند کرتی تھی بہت خوش ہوئی۔ مقدس لوکا نے اس کا ذکر کیا ہے۔ زخم زدہ، خون آلودہ ان دونوں اصحاب کو جیل میں ٹھونس دیا گیا، جہاں ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے گئے۔ جب رات ہوئی تو وہ اونچی آواز میں گانے اور خدا کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ تاریخ دان گیسپ رکوٹی نے اپنی کتاب پولس رسول میں دوسرے قیدیوں کو بیٹھی ہوئی آواز میں لعنتیں اور قسمیں کھاتے ہوئے تصور کرتے ہیں۔ مقدس لوکا یوں بیان کرتے ہیں کہ آدھی رات کو اچانک کان پھاڑ دینے والی آواز سنائی دیتی ہے، دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں کھل پڑتی ہیں۔ خوف زدہ جیلر بھاگتا ہوا اس منظر پر نظر آتا ہے۔
और दरवाजों को खुला देखता है और मायूस होकर सोचता है कि अगर कैदी भाग गए तो उसकी जान की भी खैर नहीं। शायद इसने सुना हो कि यहूदिया में अग्रप्पा बादशाह ने 16 जेल के दरबानों को सूली पर चढ़ा दिया था, जब उन जैसे मसीहियों का एक और फर्द बनाम पतरस ऐसे ही हालात में यरूशलेम की जेल से फरार हो गया था। जेलर ने तलवार निकाली और खुद को हलाक करने लगा। उसने सोचा कि ऐसी मौत उस अजियत से बेहतर है। फिर उसने एक आवाज सुनी। ये वही कैदी पौलुस थे। पौलुस वहां से भागे क्यों ना थे? आखिर हो क्या रहा था? पौलुस ने कहा, ऐसा मत करो, हम सब यही हैं। जेलर हैरान हो गया। उसने रोशनी मंगवाई और जेल के अंदर दाखिल हुआ। ये बिल्कुल हकीकत में था। पौलुस और सैलास वहीं खड़े थे। वो कांपने लगा और सोचने लगा, ये कैसे लोग हैं? वो उन्हें बाहर ले गया। तब उस पर ये अक़दा खुला जो वो बेचारी लड़की कहती थी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं। उसने उन्हें जेल से निकाला और उनके कदमों पर गिर पड़ा। वो कांपता हुआ कह रहा था, ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने फौरन जवाब दिया कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला। वो उन्हें अपने घर ले गया और उनके जख्मों को साफ किया, खाना खिलाया और उनके सारे घराने ने बपतिस्मा लिया। फिलिपिया में वो उनका आखिरी नौमरी था और ये आदमी मज़गर था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म ना हुई थी। मजिस्ट्रेट की तरफ से सिपाही आए और उन दोनों की रिहाई का हुक्म सुनाया। पौलुस रसूल ने कहा, अभी नहीं। सफ़ा नंबर 97। एक और छोटा सा मसला है जो जवाब तलब है, क्योंकि उन्हें बिला जवाब तलबी, बिला जवाज, बिला कार्रवाई गैर कानूनी सज़ा दी गई है। शायद मजिस्ट्रेट ये जानना पसंद करेगा कि वो और सैलास रोमी शहरी थे। सिपाहियों के चेहरे पर सरासमीगी छा गई। पौलुस रसूल पर ज़ाहिरी ज़्यादतियाँ उन इल्ज़ामात के मुकाबले में कुछ भी ना थीं जिनसे मजिस्ट्रेट दो चार था। रोमी कानून बड़ा वाज़ेह था और इस ज़िम्न में बहुत सख्त था कि आप रोमी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बगैर सज़ा नहीं दे सकते। 100 साल पहले अजीम कानूनदान सिसरो ने कहा था, अगर रोमी शहरी को बांधा जाए ये गलत काम होगा, अगर रोमी को थप्पड़ मारा जाए तो ये जुर्म होगा, अगर उसको कत्ल किया जाए तो ये अजीज़ का कत्ल होगा। सिसरो की हिमायत में मुकन्नना थी जिसकी तारीख 500 साल पुरानी थी। रिकी ओटी कहते हैं 509 कबले मसीह की लीक्स वलेरिया किसी शहरी को पहले किसी फैसले बिना थप्पड़ मारने से भी मना करती है। 248 कबले मसीह की लीक्स पोर्शिया किसी भी वजह से कोड़े मारने से मना करती है। मैजिस्ट्रेट को यह मालूम था। इससे भी बुरी बात यह थी कि पौलुस रसूल भी उसे जानते थे और उन्हें यह भी मालूम था कि एक मैजिस्ट्रेट की गलती की वजह से पूरे शहर को भी सजा मिल सकती थी। इस गलती को दुरुस्त करने के लिए अब वो क्या करेंगे? पौलुस रसूल ने फरमाया कि वो उसकी माफ़ी मांग सकते थे, जो उन्होंने मांगी, और एक दरख्वास्त भी की कि वो और उनके साथी शहर को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि लोग तैश में थे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल था। पौलुस रसूल इस बात पर राजी हो गए और लुदिया को खैर बात कहा और तिमोथी और सैलास को लेकर अग्नेशिया से होते हुए मगरिब का रुख किया, लेकिन मुकद्दस लूका को वहीं छोड़ गए। एक कलीसिया फिलिपिया में कायम हो गई थी जो उम्र भर उनके लिए खुशी का बायस रही। कुछ ऐसा भी अंजाम पाया जिसका इन्हें उस वक्त एहसास ना हुआ। अगरचे रोम में पहले ही मसीही थे, किसी को भी मालूम नहीं कि वो वहां कैसे पहुंचे। एगिन से परे पहला फॉर्मल मसीही मिशन एक बरे आज़म में कायम हुआ जिसे यूरोप कहा जाता है। मसीहियों के लिए फिलिपिया यूरोप के लिए दरवाज़ा ठहरा। फिर यूरोप ने 14 साल बाद दुनिया के लिए दरवाजे का काम किया। ताहम अगली मंजिल पर दो चीज़ें इस तौर पर उम्दा तरीके से ना हो सकी। थेसालोनिकिया मकदूनिया का सदर मकाम और बड़ा शहर था, जिसकी बुनियाद कसेंडर की मलका ने 315 कबले मसीह में रखी थी, जो सिकंदर आजम का एक जर्नैल था। उस शहर का नाम कसेंडर की मलका थेसालोनिकिया के नाम पर रखा गया था। ये सिकंदर आजम की सौतेली बहन थी। विया एग्नेशिया की तामीर का एक और पहलू भी था कि मकदूनिया के साहिल पर यह बेहतरीन बंदरगाह थी जिससे उसकी मुआशी हालत तरक्की कर गई।
मगर पालूस रसूल के दिनों में उनकी हालत इतनी अच्छी ना थी। मर्फी ओकॉनर उसकी यूं अक्कासी करते हैं कि उसे ताजिर और मतमूल असहाब चला रहे थे। इसका ताल्लुक रोम से बड़ा गहरा था। ये देखा गया कि मजदूर उसकी इमारत में हिस्सेदार ना थे। अपना गुजारा करने के लिए उन्हें दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता था और हफ्ता में 7 दिन। दूसरी चीज़ों की तरह उनकी मजहबी तमानत भी अमीर सल्ब कर लेते। सफ़ा नंबर 98। और यूं ये सिलसिला जारी रहा। कबीरस उनका मुहाफिज देवता था। क्यों? इसकी वजह मालूम ना थी। तसालोनिकिया के शुरफा कबीरस देवता को चाहते थे और मुल्की मजहब में उसे आला क्लास के लिए देवता माना जाता था। इस तरह मजहब से भी उनको महरूम कर दिया गया। तसालोनिकिया में तिजारत के बहुत सारे मौके यहूदी आबादी के लिए दिलचस्पी का बायस बने। पालूस रसूल और सैलास ने इबादत खाने की जमात को ही मरकज़ निगाह बनाया। मतवातर 3 हफ्ते लोग खुशी से उनका कलाम सुनते रहे। फिर तनकीद शुरू हुई और मतजात पैगाम की वजह से उन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद कुछ मतमूल खवातीन एक बारसूख यहूदी बनाम जेसन वफादारी से उनमें शामिल रहे और उसी दौरान उन्होंने अपनी तवज्जो गैर अक़वाम की तरफ माइल की, खासकर मजलूम मजदूर आबादी की तरफ। पालूस रसूल खैमादुज़ी का काम करने लगे, वही दिन में 12 घंटे। गरीबों के लिए मसीह का पैगाम कोई मादी मफाद नहीं लिए था, मगर इन्हें यह बताया गया कि खुदा गरीबों को अजीज रखता है और ये कि अमीर इलाही अदालत में कांपेंगे, जिसे उन्होंने खास तौर पर अपनाया। छोटी सी कलीसिया बहुत बढ़ गई और मतवातर बढ़ती जा रही थी। ये कामयाबी इबादत खाने के रहनुमाओं को ना भाई। वो मार्केट में गए और शहरियों को इकट्ठा किया और पालूस और उसके साथियों को घसीटकर मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए निकले। जब वो ना मिले तो जेसन और मकामी रहनुमाओं को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो दुनिया को तहस नहस कर रहे हैं। F.F. ब्रूस बयान करते हैं, अवाइली मसीही जमात के लिए ये कहना कि उन्होंने दुनिया को तहस नहस कर दिया है ने कई वाजों के लिए मवाद फराहम किया। ताहम बहुत कम वाइजीन ने ये एहसास किया होगा कि इस ज़माने में ये इल्ज़ाम कितना ख़तरनाक होगा। यहूदिया और गलील में यहूदियों की रोम के ख़िलाफ़ मज़ाहमत बतदरीज बढ़ रही थी और वो यहूदी जो मुख्तलिफ मकामात पर रह रहे थे भी इसमें शामिल हो रहे थे। बाइख्तियार असहाब इस नारे को तहस नहस करना रोम के खिलाफ यहूदियों की साजिश का सबूत समझते थे, जिसे जेसन मकामी रहनुमा शह दे रहा था। खैर, उन्होंने अक्लमंदाना फैसला किया। उन्होंने जेसन से कहा कि अगर तुम इन लोगों को शहर से निकाल ले जाओ तो ये दोष ना दिया जाएगा। पौलुस के पास उसको कबूल करने के अलावा और कोई चारा ना था, लेकिन वो बड़ी बेचारगी से रवाना हुए। तसालोनिकिया में बेचारे नौमुरीद अब हंसी का निशाना बनेंगे और शायद जुल्म का निशाना भी होंगे। ब्रूस उनके बयान को यूं तरतीब देते हैं, ये प्रोपेगेंडा करने वाले यहूदी भी खूब थे। वो यहाँ आकर आपको इबादत खाना छोड़ने को कहते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो चले जाते हैं और बेचारे इन गरीबों को हालात के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। इससे पेशतर मुकद्दस पौलुस पर बुज़दिली का इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया गया था। अगरचे पौलुस ऐसा ना करते तो वो खुद उनके साथ और जेसन और नौमरीद सब जेल में होते। सफ़ा नंबर 99। इसी वजह से वो रात की तारीकी में चले गए और ये बड़ा जिल्लत आमेज था। बास का ख्याल है कि उनका मकदूनिया से निकलकर मगरिब की तरफ वाया अग्नेशिया में तरकीम के एडियाटिक जाने का इरादा था और वहां से इटली और रोम। बहरहाल वही वक्त था जब थेसालोनिकिया से मतवक्के ताइफा पहुंच गया और मदाखलत करने वालों के खिलाफ तंबीह करने लगा। पौलुस रसूल को फिर वहां भी जल्द जाना पड़ा। बूरिया में उनके नौमुरीदों ने उन्हें मशवरा दिया कि चूंकि उनके लिए हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, इसलिए उनके साथी अलग अलग हो जाएं। ये वाजिब मशवरा था क्योंकि वो पौलुस के पीछे पड़े हुए थे। इसलिए सैलास बोरिया में नए काम की देखभाल के लिए रुक गए। बेचारे तिमोथियस को, जो बड़ा शर्मीला और नाजुक था, उसे थेसालोनिकिया में
शेरों की मांद में छोड़ दिया गया। और पता है क्या हुआ? क्या थेसालोनिकिया में कोई शख्स वफादार रहा था? और जब थेसालोनिकिया के शुरफा का इंतकाम उन पर भड़का, क्या सब ने ईमान को खैर बात कह दिया? उसके बाद दोनों पौलुस के नक्शे कदम पर चले। उसी दौरान वो जनूब की तरफ रवां दवां रहे। इससे ज्यादा दूर वो शहर ना था जहां माहिर इलाहियात और फलसफी मतजाद की खोज में मस्बत तौर पर लगे रहते। वो इस बात के लिए दीवाना थे और इस दिलचस्प खेल में दिन रात जुटे रहते थे। वो तीनों यहाँ महफूज रहेंगे और बिलाशुबा ये शहर एथनिया था। ये नाम ही मुआशरती, सियासी, सकाफती, रूहानी इक़्तिदार को समझने के लिए काफ़ी था। हेलेनिज्म के लफ्ज़ से जो बात समझी जाती थी, जिससे पौलुस रसूल जैसे एक ज़ीरक यहूदी, और वो भी बचपन से मुंतशिर यहूदी मिलत होने का बखूबी तरबियत याफ्ता थे कि उसे कैसे समझना और उसका मुकाबला कैसे करना है। चौथी सदी क़ब्ले मसीह में सिकंदर आज़म की फ़ौजें मकदूनिया से निकल पड़ी और उस वक्त की नामालूम दुनिया को फतह कर लिया। मगर वो महज फ़ौजी फतूहात थी, लेकिन असल फतह तो तिजारत, अदब, आर्ट, मौसीकी, ड्रामा, तर्ज ज़िंदगी के अलावा लसानी तासुर की थी। हेलेनिस्टिक दुनिया में आपको दो ज़बानों का जानना ज़रूरी था। एक तो अपनी मादरी ज़बान और दूसरी ख़ास यूनानी, जिसे आइन कहा जाता था। ये एथनिया में रोज़मर्रा की ज़ुबान थी। वो शहर ज़्यादा दूर ना था जहाँ मतनाज़ा इल्म इलाही और फ़लसफ़ा मस्बत अंदाज में नशोनुमा पा रहा था। लोग उसकी तरफ राग़िब थे और खेल के तौर पर उसमें हिस्सा लेते थे, और वो शहर एथनिया यानी एथेंस था। पहली सदी ईस्वी में एथनिया की अजमत को 400 साल हो चुके थे और अब मौजूदा ज़माने में माजी की पुरअज़मत यादगारें जमूद पा गई थीं। उनमें एथनिया का मखसूस पार्थन मंदिर था जो किला के ऊपर से मुनफरिद नजर आता था। मौर्रिख पॉल मैनर अपनी किताब इन द फुलनेस ऑफ टाइम में लिखते हैं कि ये फैसला करना मुश्किल था, यहाँ तक कि पौलुस रसूल के 20 सदियां बाद भी इस किले एक्रोपोलिस का कौन सा मंजर ज्यादा आलीशान था।